Okay, today we are starting with one huge chapter in physics. This chapter is from the unit light, optics or light. Okay, so in total there are three chapters in this unit: refraction at plane surfaces, refraction through lenses, and I think the last chapter is about electromagnetic spectrum. Yeah, so let's begin. Can everyone hear me? Please show me thumbs up. Okay, perfect. Anushka, if you cannot hear me, then the problem is at your end. You can rejoin if you want. ठीक है. So yesterday I sent a video, so huge video. मैंने बोला था कि इसको देख लो, easy हो जाएगा आज का lecture. So it doesn't matter if you've seen it or not. I have to go quickly, I have to go swift and complete the syllabus as we have planned. So I'll be teaching with a little different attitude in live lectures than as compared to when I have taught earlier in the recorded lectures, because both have different you can say purpose. Okay, आज का पर्पस है पार्ट 1 ख़त्म करना है आपको. ठीक है, सो एक एक चीज़ मैं तुम्हें समझाते जाऊँगा. Let's first do the introduction. Okay, let us start the introduction from this figure. ठीक है, जिसने भी क्लास 9th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम का चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स में, क्लास 9th में, उसको ये फिगर तुरंत समझ में आ जाएगी. सो दिस फिगर इज अबाउट रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इनटू द सेम मीडियम. तो लाइट रे जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रहती है, वो सिर्फ एक सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है. एंड this diagram, it explains what happens actually in reflection. So AO is incident ray, OB is reflected ray, ON or NN dash you can call. It's a normal. Normal is an imaginary perpendicular drawn at the surface at which the reflection is happening. O is the point of incidence. Angle AON is the angle of incidence I. Angle BON is the angle of reflection R. And yeah, this is what we have studied in class 9. यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, that is laws of reflection. And laws of reflection says that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ठीक है, और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, इसमें एक स्पेशल केस था. If the ray of light is incident normally, then it reflects back along the same line. अगर ray of light along the normal आ रही है तो वो वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ भी इक्वल होगा, बट इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक्स. ठीक है, जहाँ से रे डायग्राम्स और ये सब शुरू हुआ. In class 10th, in the topic of refraction, we are going to take it ahead. ठीक है, तो और क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं. Okay, so this is the topic which we are going to study in class 10, refraction. तो refraction होता क्या है? Diffraction means when a ray of light enters from one transparent media to another transparent media. दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है. रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रहा है. कैसे एंटर कर रहा है? ओब्लिकली मतलब स्लैंटिंग, स्लैंट वे में. तो क्या होता है उसके साथ? इट बेंड्स, इट चेंजेस इट्स पाथ. कहाँ पे बेंड करता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑन द बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया.
सो ये जो बेंडिंग हुआ रे ऑफ लाइट में व्हेन इट एंटर्ड फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं. यहाँ पे तुम्हें दो डायग्राम दिख रहे हैं रिफ्रैक्शन के. सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे? डेफिनेटली हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. दैट्स व्हाई आई एम नॉट ड्रॉन द रिफ्लेक्टेड रे. अदरवाइज रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही होता है. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे in both the cases if you're wondering where is the reflection happening. But I am not going to talk about reflection today. I'm just going to focus on refraction. So you have to focus on two rays. One is AO, incident ray. The second one is OB, refracted ray. AO and OB. AO is incident ray and OB is refracted ray. Do you see that AO was going in a direction, in a particular direction, but after entering the media, it changed its direction. Actually उसका जो ओरिजिनल पाथ था वो रेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है वहाँ पे था, बट अब वो बेंड हो चुका है. अब वो नॉर्मल जो दिख रहा है तुम्हें, ब्लैक परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, इट हैज़ नाउ बेंट एंड इट हैज़ कम टूवर्ड्स द नॉर्मल. दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है सेकेंड मीडिया से फर्स्ट मीडिया में. यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही थी एयर टू वाटर. अब वाटर टू एयर जब रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होता है, टू रेज आई वॉन्ट यू टू फोकस, AO and OB. AO is incident ray and OB is the refracted ray. सेम चीज होती है. when the ray of light travels from water to air at the surface separating two media at the point of incidence, it changes its path. Its original path is shown by the red dotted line, but now it bends away from the normal, OB, in the second diagram. I hope everyone can see what I am trying to show you. ठीक है, मैं इसको और बोरिंग बना सकता हूँ by reading the textbook. I don't want to do that. मैं इसलिए तुम्हारे सामने facts रख रहा हूँ. Understand the facts. It's very simple. And then I'll ask you some questions based on these facts. And you will see that ये पार्ट अपना ख़त्म हो जाएगा फटाफट. We have got to do 4 parts in this chapter. 4 huge parts. ठीक है, आज मैंने अगर एक पार्ट भी ख़त्म कर दिया ना तो मैं बड़ी बात मानता हूँ. This is a huge chapter. आई एम श्योर तुम्हारी स्कूल में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया अभी तक. Tell me yes. I knew it. मुझे पता ही था. तो ये इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं. अच्छा, यहाँ पे मैं 2 एंगल दिखाना चाहता हूँ तुम्हें. फर्स्ट डायग्राम में एंगल AON देखो, उसको मैंने एक सिंबल दिया है I इन द फर्स्ट डायग्राम, एंड दैट I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस. जस्ट अ मोमेंट, समबडी इज कॉलिंग मी. हेलो. Yeah, so in this first figure you can see angle I, angle R. These 2 angles are very important angles. As I told you, 2 rays, very important rays, the incident ray and the refracted ray. These 2 rays, incident ray and refracted rays, are making 2 angles with the normal, angle of incidence and angle of refraction. Angle of incidence and angle of refraction. In the previous case, that is the case of reflection, the angle of incidence and reflection were equal, but here it's not the case. Whenever refraction happens, whenever a ray of light enters from one transparent media to another transparent media, it bends, and that's why the angle of incidence and refraction are always different. Okay, so here in the first diagram we can see that angle of incidence is greater than angle of refraction. In the second diagram, since the ray of light is going from water to air, it is going away from the normal, bending away from the normal, and that's why angle of incidence is smaller than the angle of refraction. Okay, so this is what we can observe how the refraction happens when the ray of light enters from one transparent media to another transparent media. ठीक है. अच्छा, one more thing I want to tell you. मैंने यहाँ पे एयर के आगे R लिखा है और वाटर के आगे D लिखा है. किसी को पता है इसका मीनिंग?
एयर के आगे आर क्यों लिखा है, वाटर के आगे डी क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? वेरी गुड. एयर इज अ रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. रेयरर एंड डेंसर, इसका मीनिंग क्या है? तो तुमने फिजिक्स में पढ़ी एक चीज़, एक क्वांटिटी जिसका नाम है डेंसिटी, विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. वैसे ही एक दूसरी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, ऑप्टिकल डेंसिटी, which has nothing to do with mass and volume of a substance. It has to do something with the speed of light in that medium, in that substance. First of all, optical density उसी substance की होती है जो transparent होता है. एयर भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, मतलब दोनों के पास ऑप्टिकल डेंसिटी है. बट वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज़्यादा है. दैट मीन्स वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कम्पेयर टू एयर. इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा एयर में होता है, एयर या वैक्यूम में, विच इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड. एयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा कम होता है, बट या नेग्लिजिबल डिफरेंस, सो यू कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. बट वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है. वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है दैट इज़ लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. मतलब वाटर में लाइट स्लो हो जाती है, स्लो ट्रैवल करती है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है. तो ऑप्टिकल डेंसिटी अब तुम्हें समझ में आ गया कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है. इट इज़ just the measure of speed of light in that particular medium. If the optical density is higher, speed of light will be lower. If the optical density is less, then the speed of light will be high. Just like air and water. Okay. तो ये समझा जा सकता है कि एयर को हम ऑप्टिकली रेयरर और वाटर को ऑप्टिकली डेंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के आपस में कंपैरिजन हो गई है स्पीड ऑफ लाइट की. इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर फॉरएवर डेंसर ही होगा. अगर वाटर और ग्लास की कंपैरिजन कर ले तो ग्लास विल बी ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. सो ये रिलेटिव टर्म्स है. ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयरर इज रिलेटिव टर्म्स. यू हैव टू रिलेट द स्पीड ऑफ लाइट विद दैट पर्टिकुलर मीडियम in that situation and then judge whether a medium is optically denser or rarer. Simple. ठीक है. सो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको दे दी. ओके, लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग मोर. ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और फिजिकल डेंसिटी के बीच में डिफरेंस लिखा है. फिजिकल डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ऑप्टिकल डेंसिटी मास और वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, ऑल्दो इट हैज़ द वर्ड डेंसिटी इन इट, बट देयर इज़ नो रिलेशन व्हाटसोएवर विथ डेंसिटी. इट टेल्स यू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, एंड वाइस वर्सा. ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया. अच्छा, नाउ आई वॉन्ट यू टू सी दिस थर्ड केस. आई शोड यू द 2 केसेस ओवर हियर जहाँ पे रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, वाटर से एयर में आ रहा है. लेकिन थर्ड केस देखो, पहले 2 केस में द रे ऑफ लाइट वॉज अप्रोचिंग ओब्लिकली मतलब स्लैंट. थर्ड केस में क्या हो रहा है, द रे ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग स्ट्रेट नॉर्मली. और ये थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 है. मतलब नॉर्मल जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों ट्रैवल कर रही है. तो ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ है, दोनों के दोनों 0 है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल है. और ये एक लौता केस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट बेंड नहीं हो रही. सो मेरा क्वेश्चन है कि थर्ड केस तुम्हारे सामने है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थर्ड केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट इज माई क्वेश्चन. तो मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑल ओवर अगेन? इतनी जल्दी नहीं है यार.
थोड़ा सोच समझ के आंसर कर लो. What is refraction? I asked. Refraction is bending of light. I agree with you. अगर तुम बोल रहे हो कि यहाँ बेंडिंग नहीं है तो रिफ्रैक्शन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है. बट वाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड? फंडामेंटल क्वेश्चन. वाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड? बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस. क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है. तो स्पीड का चेंज होना रिफ्रैक्शन है. सिर्फ लाइट, रे ऑफ लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन नहीं है. बेंडिंग तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्या बोलते हैं, एक आउटकम है. बेंडिंग एक आउटकम है. आउटकम को देख के तुम जज नहीं कर सकते कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो मेन रूट कॉज है रिफ्रैक्शन का वो क्या है? चेंज ऑफ स्पीड. तो अब मुझे बताओ कि थर्ड केस में स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही? यस, थर्ड केस में स्पीड चेंज हो रही है, बट बेंड नहीं हो रही है रे ऑफ लाइट, बिकॉज वो ओब्लिकली नहीं एंटर कर रही है. स्पीड तो अभी भी चेंज हो रही है. अगर स्पीड चेंज हो रही है दैट मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है. देयर इज रिफ्रैक्शन एंड यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ स्विमिंग पूल. ठीक है, एंड यू लुक एट योर फीट, you look at your legs actually, not only your feet, your legs, they appear shorter to you, don't they? Have you seen that? And you're looking just below, you're looking like vertically downwards, you're not looking obliquely, you're looking vertically downwards, still your feet appear shorter. matlab there is some change in the way the light is traveling, and that's why the objects are displaced from its position when viewed from one medium to the other. So रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें भी. मतलब रिफ्रैक्शन को हम बेंडिंग से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते. रिफ्रैक्शन को किससे रिलेट करना होगा? चेंज ऑफ स्पीड से. ये समझ लो. ठीक है, चलो, वेरी नाइस, दिस वाज गुड स्टार्ट टू द चैप्टर, गुड इंट्रोडक्शन. एवरीथिंग which I told just now, it actually made justice to whatever topics we are going to learn after this. Okay, और एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने लिखा है. This is from my video actually. I made those notes while I was teaching. Arrange transparent mediums in increasing order of their optical density. सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने लिखी है ग्लास की. इससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड एयर. अगर हम लोग विथ रिलेटिव टू वाटर एंड एयर कंपेयर करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है. उससे ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा है वाटर में, और सबसे ज़्यादा एयर या वैक्यूम में. तो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर की, और सबसे कम एयर या वैक्यूम की. ठीक है, very good. Okay, so that was all about the introduction to this chapter. Now coming to the laws of refraction. Laws, this is the second topic, laws of refraction. इसके बाद refractive index, उसके बाद refractive index with respect to speed of light. ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं पूरा ये कवर करूँगा, छोटी छोटी बातें करूँगा तुमसे, और I'll try to clear that topic out. ठीक है, अब तुम देख रहे हो laws of refraction and refractive index. These are huge topics. Let me simplify those for you. बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ओके, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, किसी एक साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनाए, और इसमें एक बहुत ही बड़ा पार्ट था एक
साइंटिस्ट का जिसका नाम है स्नेल, नॉट स्नेल, स्नेल, ओके, SNELL, स्नेल। तो 2 पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। ये 2 लॉज हमेशा फॉलो होते हैं यूनिवर्सली विदाउट एनी एक्सेप्शन। फर्स्ट लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन अगर ले लो और उसका रेशियो निकालो तो हमेशा जो आंसर आता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम लोग ने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। I will tell you which is the second medium and which is the first medium with an example properly. But this is the law of refraction number 1. इसको हम लोग बोलते हैं Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, which is known as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक है, ये जो refractive index है ये हमें बताता है किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी तो वो स्लो होगी या फास्ट होगी। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम वी कैन टेल अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट टोल्ड यू रिफ्रैक्शन इज नॉट जस्ट बेंडिंग, it is about the speed of light in that medium. So you should get an idea about speed of light in a medium, and then you will be able to tell how much a ray of light will bend in that medium. You must be thinking कि इसका क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, सबसे ज्यादा। ठीक है, तुम धीरे धीरे समझोगे एज द चैप्टर प्रोसीड्स कि इसका रियल लाइफ में कितने implications हैं। But for that you need to understand refractive index. Without that the chapter will not start. Okay, we'll come back to refractive index, but before that I'll tell you the second law of refraction. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, all three they lie in the same plane. ऐसा same law तुमने पढ़ा था पिछले साल laws of reflection में। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, they all lie in the same plane. पढ़ा था। यहाँ पे सेम लॉ को कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे डाल दिया। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मतलब सेकेंड लॉ इज नथिंग, फर्स्ट लॉ इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल। तो फर्स्ट लॉ को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, चलो एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट लॉ को। क्या है ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या तुम सबको ट्रिग्नोमेट्री पता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, विच गिव्स यू द रेशियो ऑफ द साइड्स in a particular order. The sides can be opposite, adjacent और hypotenuse. याद है ना सब कुछ? तो ऐसा एक रेशियो है, फर्स्ट रेशियो जो हमने पढ़ा है, दैट इज साइन। साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में पहली बार। कुछ बच्चे CBSE के बच्चे क्लास 10th में पहली बार पढ़ते हैं। तुम लोग लकी हो कि तुमने 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसका एप्लीकेशन देखो कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए अब। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, थोड़ा ध्यान से देखना इस डायग्राम को। एक रे ऑफ लाइट है AO, एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है OB बन के। कैन एनीवन टेल मी, ओपन माइक, AO को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। OB को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ये रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? रेयर डेंसर। रेयर डेंसर के नाम, हाँ एग्जैक्टली, रेयर टू डेंसर जा रहा है। ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे बेंड हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऋषि,
टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, कौन सा एंगल बड़ा है, आई या आर? आई इज ग्रेटर देन आर। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया है। ये सब अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। इफ यू सी, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है नॉर्मल के ऊपर, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है नॉर्मल के ऊपर। ए सी और बी डी ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब मैं तुम्हें दो ट्राइंगल दिखाऊंगा, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ओ सी और बी ओ डी। कैन यू सी देम? कैन यू सी देम, ए ओ सी एंड बी ओ डी? अच्छा, ए ओ सी और बी ओ डी ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ए ओ सी का एक्यूट एंगल आई है और बी ओ डी का एक्यूट एंगल आर है। कैन यू सी दोज टू एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? वेरी गुड, इफ यू कैन सी देम, वेरी नाइस। साइन ऑफ आई क्या होगा? Sine of I will be opposite upon hypotenuse. SOHCAHTOA. If you remember from last year, I taught you SOHCAHTOA. याद है? याद है मेरे प्यारे बच्चों? SOHCAHTOA वीडियो बना बना के डाले थे मैंने, मुझे याद है। वर्स्ट डे इन माई टीचिंग करियर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई प्रोसीड। It happens with the best of us. We are stuck in lives and don't know how to move ahead. That was my time last year. I was depressed. But I'm glad that I've accepted the situation and now something new has started again, all over again. Still the situation is worst, but I'm in a better position. तो होता है ऐसा। बट मुझे याद है, मैंने ये जितने भी वीडियोस बनाए बहुत हेल्प कर रहे हैं सबको। एंड SOHCAHTOA तो सबको याद होगा, SOHCAHTOA है ना। SOHCAHTOA में सो क्या होता है? एस का मतलब होता है साइन, ओ का मतलब होता है ऑपोजिट और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ कि एंगल आई के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? वेरी गुड। और हाइपोटेनियस कौन सा है ट्राइंगल एओसी में? तो ए सी अपॉन एओ, ए सी अपॉन एओ, ठीक है, दैट इज ए सी अपॉन एओ। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल ले लो डीओबी, उसमें भी तुम SOHCAHTOA अप्लाई कर सकते हो एंगल आर के ऊपर, बिकॉज साइन ऑफ एंगल आर निकालना है तुम्हें। सो आर के ऑपोजिट में डीबी है और हाइपोटेनियस ओबी है, सो डीबी अपॉन ओबी। सो अगर तुम ये रेशियो, मतलब ये जो लेंस है, इसको निकाल लोगे, इससे कैलकुलेट करके एक नंबर निकालोगे, जो नंबर तुम्हें मिलेगा ना वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज आई एंड व्हाट इज आर। और ये बहुत बड़ी चीज है, स्नेल ने बताया था सबसे पहले, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन टू पेयर ऑफ मीडिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने नंबर बताए हुए हैं 1 and 2, 1 and 2। 1 वो नंबर है जो मीडियम 1 को देते हैं। मीडियम 1 वो मीडियम है जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। सो मीडियम 1 is where from where the ray of light is coming and striking the surface separating two media, and medium 2 is the medium in which the ray of light is entering. ray of light 1 to 2 enter कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये कांस्टेंट क्वांटिटी के ऊपर। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू, MEW। इट इज नॉट मियाऊ, इट हैज नथिंग टू डू विथ कैट और एनी अदर स्पीशी which looks like cat, okay? It is mu, which is a Greek letter। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कभी तुम्हारे पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, इनफैक्ट कोई भी फ़ोन है, तो उसका जो कीपैड है ना, कीपैड, उसके नीचे स्पेस बार के ऊपर लैंग्वेज लिखा रहता है। उसको अगर लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो तुम्हें ऑप्शन देंगे कि तुम्हें दुनिया की कौन सी लैंग्वेज का कीपैड चाहिए, वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोग हिंदी करते हैं डाउनलोड, कुछ लोग मराठी करते हैं, सारी लैंग्वेज दुनिया भर की अवेलेबल है। तुम उसमें ग्रीक डाउनलोड करो, ट्राई दिस टुडे,
ग्रीक डाउनलोड करो और सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ग्रीक एबीसीडी दिखेगी तुम्हें, अल्फ़ा बीटा थीटा गैमा, मतलब जो फिजिक्स में सारे लेटर्स यूज़ होते हैं या होने वाले हैं या हुए हैं पहले, वो सब दिखेंगे तुम्हें। उसमें भी कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तुम चेक कर सकते हो। यू विल फाइंड सो मेनी लेटर्स विच यू कम अक्रॉस टिल नाउ इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, थीटा बीटा गैमा अल्फा पाई फाई, ठीक है। सो दीज आर ग्रीक लेटर। और एक ग्रीक लेटर आ गया अपने पास, म्यू। म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू के नीचे अगर तुम देखोगे 2 नंबर लिखे हैं मैंने, 1 लिखा है लेफ्ट में और राइट में लिखा है 2। तो लेफ्ट में 1 और राइट में 2, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि रे ऑफ लाइट 1 to 2 जा रही है, डायरेक्शन है वो। क्योंकि हम हमेशा जब पढ़ते हैं ना, सो व्हाट हाउ वी रीड, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड वी गो टूवर्ड्स राइट, ठीक है। दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ रीडिंग। तो अगर उस तरीके से देखोगे तो रे ऑफ लाइट तुम्हें दिखेगी कि 1 to 2 जा रही है। अगर मैं उनको उल्टा कर दूं, 2 को पहले लिखूं और 1 को बाद में लिखूं, तो मतलब रे ऑफ लाइट 2 to 1 जा रही है, वाटर टू एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है विथ रिस्पेक्ट टू किस मीडियम, विच मीडियम, मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये दिखाने के लिए 1 और 2 का पोजिशनिंग, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स वन मोर थिंग विच वी हैव लर्नड। ओके, अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और नीचे 1 2 लिखा है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का है। जो राइट में लिखा होता है लेटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाला लेटर, दैट इज 1। मतलब हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। If we find this ratio, sine of angle of I upon sine of angle of R, in our given example where the ray of light is going from air to water, what we are finding? We are actually finding the refractive index of water with respect to air. मतलब हम ये ढूंढ रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आएगी तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी, कितनी स्लो डाउन हो जाएगी वो। दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग, दैट्स व्हाट दिस रेशियो टेल्स अस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, एक नंबर है, ये सिर्फ प्योर नंबर है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटी, जस्ट लाइक योर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, नो यूनिट्स। ओके, और कुछ बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग? म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो? म्यू की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू की वैल्यू 1 है, ठीक है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से वैक्यूम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। बट ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, मतलब जब रे ऑफ लाइट एयर से वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। एंड यहाँ पे जो म्यू 1 लिखा है वैक्यूम का, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो ये भी एक चीज एक्स्ट्रा है जो मुझे बतानी थी। ओके, अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, विच इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर्मूला इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूला रेयरली पूछा जाता है। हमें जो फॉर्मूला पढ़ना है दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड फॉर्मूला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, which is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. I hope if you have seen the video and taken the notes, I'm very happy. If you have not seen the video and not taken the notes, you should take it right now. If you have not taken any notes earlier, you should take it right now. Because if you won't take notes,
देन यू विल फॉरगेट इट वेरी इजीली. ठीक है. सो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट टेकन नोट्स, प्लीज़ डू सो, प्लीज़ डू सो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Bhargav, why is your video off? Keep it on. Okay, so refractive index का सेकेंड फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इसको याद कैसे रखते हैं? देखो यहां पे इफ यू नोटिस दिस, लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 1, मतलब रे ऑफ लाइट 1 से आ रही है, मीडियम 1 से. राइट में कौन सा नंबर है? नंबर 2, मतलब रे ऑफ लाइट नंबर 2 मीडियम 2 में जा रही है. तो ऊपर कौन सा मीडियम आएगा? न्यूमरेटर में मीडियम 1 और डिनोमिनेटर में मीडियम 2. ऐसे करके याद रखो इसको. ठीक है. ओके, यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखाया है. सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से वाटर जा रही है, वाटर को बाद में लिखा है, एयर को पहले लिखा है. एयर को लेफ्ट में लिखा है, वाटर को राइट में लिखा है, म्यू के. ठीक है. इसका एक फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बताया, साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन मैंने बोला इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट. सी इज अ सिंबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ पे मैंने v लिखा है, एयर की जगह v लिखा है, और v का मतलब होता है वैक्यूम. v का मतलब होता है वैक्यूम. ठीक है. क्यों मैंने वैक्यूम लिखा? क्योंकि एयर में और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अच्छा, नीचे मैंने लिखा है w, इसका मतलब है वाटर. सो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है वैक्यूम में और वाटर में, सीधा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल सकता हूँ. फॉर्मूला है मेरे पास. दिस इज एन ईजी मेथड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 और मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. So this is one more interesting fact about refractive index, the second formula of refractive index. जरा ये वाला एग्जांपल देखो. कैन यू टेल मी कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एनीवन कैन आंसर? एनीवन कैन आंसर? वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर. यू आर राइट. So if I want to find the refractive index of the second medium with respect to first medium, that is refractive index of air with respect to water, मैं क्या करूँगा? sin i अपॉन sin r करूँगा. दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. अब समझ में आ गया? सेकेंड फॉर्मूला रिलेट हो गया. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके. अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने थोड़ा सा एक हिंट दिया था तुमको उसके बारे में. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल अबाउट दिस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज नोन एज इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बात पक्की है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से आ रही है? एयर से या वैक्यूम से, और किसी और मीडियम में जा रही है. सो रे ऑफ लाइट इज always entering from air or vacuum to the given medium. ठीक है. So absolute refractive index का symbol क्या है? Do you see this 3? mu g, mu w, mu a. सिर्फ mu है, आगे कोई लेफ्ट में लेटर लिखा ही नहीं है. mu के राइट में g, w, a ये सब लिखा हुआ है. तो ये absolute refractive index में सिंपल है. It is taken for granted कि ray of light कहाँ से आ रही है? एयर से या वैक्यूम से. ठीक है. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर वाला हमको पढ़ना ही नहीं है. हमको एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ना है.
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. सिंपल. तो म्यू जी क्या है? म्यू जी इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. क्या होगा उसका फॉर्मूला? क्या होगा उसका फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अच्छा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है. प्लीज जिसने नोट नहीं किया वो ये वाली चीज प्लीज नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. दैट इज 3 times 10 to the power 8 meter per second अपॉन 2 times 10 to the power 8 meter per second. दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सॉल्व करोगे तुम्हें 1.5 मिलेगा. So what is 1.5? 1.5 is the absolute refractive index of glass. And what does that mean? देखो वो भी मैंने लिखा है साइड में. It means that, I'm sorry for that. It means that the speed of light in glass is 1.5 times less than the speed of light in air. मतलब whenever the ray of light enters from air to glass, its speed reduces by 1.5 times. Its speed becomes 1.5 times less than the original speed. वैसे ही मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी निकाला है जो आता है 1.33, और फिर मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाला है जो मैंने पहले ही बताया था. इट इज C/C और 1. So this is very interesting. Absolute refractive index. ठीक है, अब आगे जाते हैं. There is one more thing which I want you to, last thing actually which I want you to note down, which will give us new insights about new topics. मैंने तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, म्यू के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई, बट तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो. मैंने हमेशा तुम्हें बोला कि रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है. एयर हमेशा था वहां पे. एयर वॉज ऑलवेज देयर. एयर वॉज वन मीडियम विच वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड इन अमॉन्ग ऑल द एग्जाम्पल्स. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर एयर. I'm not going to consider air. So what I'm going to consider is two transparent mediums other than air. And the topic's name is refractive index of medium 1 with respect to medium 2. And here medium 1 and medium 2, neither of them is air. One of them can be glass, one of them can be water, but they are not air. और इस केस में हम कैसे करेंगे? देखो sin I upon sin R तो हमारे पास ऑलवेज खड़ा है फॉर्मूला, बट वो हम यूज नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज वी हैव एक्चुअली रिलेटेड द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. सो हियर यू गो, द फर्स्ट फॉर्मूला. प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैवंट. इफ यू हैव नोटेड इट डाउन देन थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. दिस इज म्यू WG या W म्यू G. इसका मतलब कोई बता सकता है स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? जस्ट बाय लुकिंग एट इट. एग्जैक्टली फ्रॉम वाटर टू ग्लास. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CW upon CG. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज CW, व्हाट इज CG? Speed of light in water upon speed of light in glass. Absolutely correct. And we already know speed of light in water is 2.25 times 10 to the power 8. Speed of light in glass is 2 times 10 to the power 8. Solve करने पे मिलता है 9 upon 8. So the refractive index of glass with respect to water is 9 upon 8. And now I'm going to show you one very interesting fact. Refractive index of water with respect to glass. What is refractive index of water with respect to glass? तो मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, which comes out to be 8/9 after solving. Do you see that refractive index of glass with respect to water is reciprocal of refractive index of water with respect to glass? Do you see that? Do you see that? That means refractive index of one medium with respect to other medium is the reciprocal of refractive index of the other medium with respect to the first medium. Very interesting fact which we have discovered. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये फॉर्मूला और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसका मीनिंग मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा.
Guys, we are nearly at the end of part 1. Are you excited? See how it rolled everything and it came to end. So this is how you have to study. This is how you have to revise. हर एक टॉपिक कनेक्टेड है यहाँ पे. They are very huge, but they are all connected. So you go from topic 1 to topic 2 to topic 3 to topic 4 like this. They are all connected. Don't miss the connection. If you lose the connection, फिर वो नया शुरू से पढ़ना पड़ेगा. Okay, so what we understand over here is कि refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to medium 1. That means the product of the refractive indices of both the media with respect to each other is 1. And this is मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए एपिक एग्जाम्पल है. अगर इस पे न्यूमेरिकल आ गया और तुम्हें ये फैक्ट नहीं पता है तो गया तुम्हारा मार्क्स. अगर फैक्ट पता है तो फ्री का मार्क्स है, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें. और इसी से आती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो एक छोटे से कॉर्नर में तुम्हारी बुक के दिया हुआ है. व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? वेरी इजी. सपोज तुम्हारे पास एक बीकर है जिसमें पानी है, वाटर है, एंड ये बीकर के अंदर रखा है तुमने एक मिरर इंक्लाइंड. ठीक है. नाउ यू एडजस्ट द मिरर इन सच अ वे दैट वेन एवर यू इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट which is entering from air to water at a certain angle, after entering water it strikes the mirror at a certain angle, and that angle has to be 90 degree. 90 डिग्री पे स्ट्राइक करा होना है उसको. ठीक है. तो क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है ना, now it is striking the mirror at right angles. Normally it will get reflected back along the same path. वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होने के जाने के बाद whenever it approaches the surface separating two media, it will get refracted and that too along the same path. मतलब जिस पाथ से रे ऑफ लाइट अंदर आई है उसी पाथ से वो वापस जाएगी. मतलब रे ऑफ जो पाथ है, पाथ ऑफ द रे है, वो पूरी रिवर्स हो जाएगी. एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. According to this principle, if a ray of light travels from A to B along a certain path, it will follow the exactly same path while traveling from B to A. और ये इसलिए हुआ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दे बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. इसके लिए जितना डिग्री ऑफ बेंड या जितना चेंज ऑफ स्पीड होना चाहिए था एयर टू वाटर में जाने के लिए, उतना ही चेंज ऑफ स्पीड रिवर्स डायरेक्शन में हुआ जब वाटर से एयर में रे ऑफ लाइट आता है. एंड दैट्स व्हाई द पाथ गॉट रिवर्स्ड. दैट्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. Okay, where are we? Okay, there are few more things about refraction. Few more things which I have not discussed here. Principle of reversibility तो बता दिया. Glass slab बचा है और multiple reflections बचा है, and then we are done. Okay, let's talk about this thing, which is I feel the most ignored but the most important part of the chapter. So much ignored that even I have ignored it many times while teaching. Not deliberately, but like इतना सब पढ़ाने के बाद ना फिर इस पर ध्यान नहीं जाता, बट है ये बहुत इम्पोर्टेंट. जो तुम्हारा लेवल है ना ये ऑप्टिक्स का, ICSE का, it is far more evolved than the level of CBSE, what CBSE students are studying right now. But generally ऐसा नहीं होता है. CBSE के बच्चे बहुत ही अच्छे लेवल पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सिर्फ ये चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें इतनी डिटेल में दिया है, और एक भी डिटेल ऐसा फालतू नहीं है. दे आर ऑल एक्सेलेंट डिटेल्स. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन का स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर क्या असर होता है. ओके.
सो रिमेंबर फर्स्ट थिंग, स्पीड ऑफ लाइट तो डेफिनेटली चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट तो होनी है चेंज। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट स्पीड डिक्रीजेस, डेंसर टू रेयरर स्पीड इंक्रीजेस, ये हमें पता है। स्पीड पे क्या चेंज होता है रिफ्रैक्शन का, वो हमें पता है। डन, वी आर डन विद द स्पीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट frequency, because we don't know actually, we don't deal with frequency of electromagnetic waves or light, अभी तक हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है, so we are not much serious about it। so let me tell you that frequency does not change on refraction। तुम सिर्फ इतना याद रखो अभी, पहली चीज जो तुम याद रखोगे, frequency of light does not change on refraction। why, क्वेश्चन वो आता है उसके बाद तुरंत, वाई डज नॉट चेंज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। हर सोर्स का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो क्या चेंज होता है, तो तुम एक फॉर्मूला देख रहे होगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा। लैम्बडा, हैव यू हर्ड दैट वर्ड, साउंड्स रियली वियर्ड एंड लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा साउंड्स रियली वल्गर, लैम्बडा साउंड्स लाइक अ मराठी गाली, ए लैम्बडा इकडे इकडे रे, बट इट इज नॉट, इट इज अ ग्रीक लेटर, अगेन वन मोर ग्रीक लेटर एट योर डिस्पोजल, f is equal to v by lambda। this f is frequency, this is the speed of light or velocity of light, this is the frequency, this lambda is the wavelength। तुमने ना क्लास 9th में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा है, the length of one wave is known as the wavelength, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी मैंने बोला कि चेंज नहीं होता है, स्पीड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है रिफ्रैक्शन में। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो रेशियो है ना, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट v बाय लैम्बडा, बट v तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है लैम्बडा भी चेंज होगा। v और लैम्बडा का रेशियो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो दोनों आपस में चेंज होता है, या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या तो दोनों डिक्रीज होते हैं, और जो टोटल क्वांटिटी है रेशियो या फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन, एक स्पीड ऑफ एक रे ऑफ लाइट ने रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल किया, उसकी स्पीड कम हो गई, वेवलेंथ में क्या होता होगा, वेवलेंथ भी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी कम होगी, रेशियो सेम रहेगा, एफ सेम रहेगा, यू अंडरस्टैंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट ने रे ऑफ लाइट ने डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल किया तो उसकी स्पीड कम होगी, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, दोनों इंक्रीज होगा, रेशियो उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी, ठीक है। सो ये याद रखना कि क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज v और लैम्बडा का रेशियो सेम रहता है, मतलब v और लैम्बडा या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या तो दोनों डिक्रीज होते हैं। ओके, वन मोर थिंग, ओके वन मोर थिंग, ये फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना, इसको रट्टा मारो, इसके साथ जो करना है करो, इसको याद करो, क्योंकि हर तीसरे न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आएगा तुमको, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ठीक है। ओके, वेवलेंथ मैंने बताया, रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और रेयरर टू डेंसर टू रेयरर में वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही सुपर फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं तुमको, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लेट मी डिराइव इट एंड शो इट टू यू, दिस पार्ट कैसे कॉर्नर में दे दिया यार, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में, मुझे गुस्सा आता है देख के। ओके,
सपोज एक रे ऑफ लाइट है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू अ मीडियम। रे ऑफ लाइट एयर से एक मीडियम में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। दोनों में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी लिखता हूं मैं यहां पे, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो दोनों में सेम रहेगी? यस, वी, एफ या लैम्डा, विच क्वांटिटी विल नॉट चेंज व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स? फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। सो एफ एफ दोनों जगह सेम होंगी। अब एफ का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी बताया, V by lambda। एफ का फॉर्मूला है v बाय लैम्डा, ठीक है। अगर एफ का फॉर्मूला v बाय लैम्डा है तो एयर में लिख सकता हूं मैं c बाय लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, याद है ना c सिंबल। अच्छा, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो वो हो जाएगी v सपोज, और लैम्डा हो जाएगा चेंज और वो हो जाएगा लैम्डा डैश, है कि नहीं? दोनों चेंज हो गई क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंसी उतनी रही क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है पूरा का पूरा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशियो उतना ही है। ओके, सिंस द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल इन बोथ द केसेस, सो वी कैन से दैट c by lambda is equal to v by lambda dash, ठीक है। सो कैन वी से दैट lambda dash is equal to v lambda times, sorry, v times lambda by c? Can we say that? What is v by c, guys? देखो यहाँ पे एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट है c और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v। कैन यू टेल मी व्हाट इज v by c? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज c by v? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सही है कि नहीं? सो v by c क्या होगा? 1 by द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। कैन आई राइट v by c की जगह 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इज इट करेक्ट और नॉट? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर तुम्हें वेवलेंथ पता है एयर में किसी भी रे ऑफ लाइट की, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ किसी मीडियम में कितनी होगी तुम आराम से निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से। नोट कर लो यार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर्ड फॉर्मूला, इग्नोर्ड, इजी बट इग्नोर्ड। ओके, सबने लिख लिया? ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट एंड दिस पार्ट विदाउट ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सबसे पहले नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा।
ठीक है, सो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सिंपल, उसको याद रखो। नंबर 1 डन, समझ में भी आ गया सबको। नंबर 2 फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, थियरी है, याद रखो, इंफॉर्मेशन है। With increase in temperature, the speed of light in a medium increases, so the refractive index of the medium decreases. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हें थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब R&D। वी डोंट नो दैट, वी हैव नॉट डन दैट। क्लास 10th है ये। PhD जब करोगे ऑप्टिक्स में तब डेफिनेटली तुम इसका आंसर ढूंढ के मुझे बता देना, बिकॉज आई हैव नॉट डन PhD या। बट अभी सिर्फ याद रखना है टेम्परेचर ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। थर्ड फैक्टर, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तुम्हें यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं रे ऑफ लाइट के। तुम मुझे बता सकते हो कि, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? रेड हैज गॉट मोर वेवलेंथ, वेरी गुड। किसकी वेवलेंथ कम है? ओके, रिमेंबर, मोर वेवलेंथ मीन्स मोर स्पीड, क्योंकि जो रे ऑफ ये जो कलर है लाइट का, ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। इट जस्ट वॉन्ट्स टू गो फार, इट ट्रैवल्स, इट वॉन्ट्स टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस, इट हैज़ अ ग्रेटर स्पीड ऑल्सो, इट हैज़ ग्रेट एनर्जी, ठीक है। सो इट पेनिट्रेट्स मोर इन अ मीडियम, इसलिए जो सिग्नल होते हैं ना हमेशा रेड कलर के होते हैं, दूर से दिखते हैं, इसके लिए रेड कलर चूज किया गया है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो रेड कलर किसी भी मीडियम में जब एंटर करता है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा कम नहीं होती है, इट स्पीड डज नॉट चेंज मच व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम फ्रॉम द अदर मीडियम। सो रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है फॉर अ गिवन मीडियम। समझ में आया तुम्हें क्यों? रेड लाइट दूर तक ट्रैवल करता है, उसके पास इट सफर्स लेस रिफ्रैक्शन बिकॉज इट हैज ग्रेटर स्पीड इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। इसके लिए, और एंड बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी लॉन्ग, इट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इज ऑलवेज लेस, और वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू लाइट के लिए विल बी मोर, मतलब ब्लू लाइट ऑलवेज बेंड्स मोर देन द रेड लाइट, ब्लू बेंड्स मोर देन रेड, इतना लिख लो यार, ब्लू बेंड्स मोर देन रेड इन अ गिवन मीडिया। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, refractive index of a medium for red light is always smaller than refractive index of blue light for the same medium. हमेशा याद रखना। that depends on the wavelength, इसके लिए ऐसा है, ठीक है। फिर मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात की तुमसे, और लास्ट चीज बची आई थिंक, यस, ग्लास स्लैब। Just want to show you one very nice diagram I had, I think over here somewhere. You can find interesting videos on YouTube showing you this. This is exactly how refraction looks like. You see bending of light happening when the ray of light is entering from air to glass and glass to air. This is what refraction looks like. And you know what is this piece of glass? This is a special piece of glass which is known as parallel sided glass slab.
ये पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग है, because it has got some practical applications. So parallel sided glass slab. Okay, so this is the ray of, I'm sorry for that, this is the incident ray of light, this is the refracted ray of light, and this is the emergent ray of light. Incident, refracted, emergent. इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ, परपेंडिकुलर लाइन किसी सरफेस पे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट नॉर्मल। तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल तो यहाँ भी बनेगा। दिस एंगल विल अगेन बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो अंदर जाते टाइम और एक बाहर निकलते टाइम। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब में ये देखा गया है कि दोनों नॉर्मल एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, बिकॉज दोनों सरफेसेस पैरेलल है ग्लास की, तो दो पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। और इसकी वजह से ये ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि I is equal to E. Angle of incidence and angle of emergence both are equal to each other. This is parallel sided glass slab. ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं स्कूल में, जब स्कूल चालू होती है ऑफ कोर्स। अभी तो तुम सिर्फ इसको पिक्चर में देख के समझ जाओ, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू शो यू। एनीथिंग एल्स? वेट, लेट मी जूम आउट। Oh yeah, this one over here. Rectangular glass slab. Now if you can see over here, exactly सब कुछ जैसे मुझे दिखाना है वैसे दिख रहा है यहाँ पे। रे डायग्राम है उसका, ये रे डायग्राम तुम्हें प्रैक्टिस करना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले डायग्राम में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जस्ट नोट दैट इंसिडेंट रे पी क्यू आ रही है, पॉइंट ओ, ये दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो स्ट्राइक कर रही है एंड रिफ्रैक्ट हो रही है ओ ओ डैश, एंड देन इमर्ज होके बाहर ओ डैश एस के पाथ से बाहर निकल गई। अगर ये इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, विल प्रोड्यूस इट अहेड, so it is seen that the original path of incident ray and the final path of emergent ray, they both are parallel to each other. So मतलब ray of light bend नहीं हुई है इसमें, it has got just parallelly shifted, उसको बोलते हैं lateral shift. So there is a lateral shift which has been produced in this case, which is rectangular refraction through rectangular ग्लास स्लैब, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होते हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट अलोंग विद दैट देयर इज दिस लैटरल शिफ्ट, एंड दिस लैटरल शिफ्ट इट डिपेंड्स ऑन आई, म्यू जी एंड कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हाट इज आई? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट मिलेगा। What is mu g? Mu g is refractive index of glass with respect to air, or absolute refractive index of glass. जितना ज़्यादा refractive index of glass रहेगा उतना ज़्यादा lateral shift आएगा। And the last thing is color और wavelength of light. अगर मैं red light डालूंगा तो lateral shift कम होगा, because red light ज़्यादा bend नहीं होती है, but अगर मैं violet light डालूंगा इसके अंदर तो lateral shift ज़्यादा होगा। So that is your parallel sided glass slab. Yes. प्रणव का आज भी बार-बार कट हो रहा था, मैंने उसको फोन भी किया। Just a moment. Let me. My recording is on. Wait. Okay. Last thing. सब हो गया, सब खत्म हो गया।
multiple images in a thick plain glass plate or thick mirror. Have you ever observed this? Multiple images in a thick plain glass plate or thick mirror. So see, this is such a thing. ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा. बट फिर भी मैं एक अटेम्प्ट तो लूँगा तुम्हें समझाने के लिए. आई वुड नॉट टेल कि नहीं ये वीडियो देख लो यार. ये मैं पहले अटेम्प्ट लेता हूँ, देन आई विल सेंड यू वन वीडियो विच प्रैक्टिकल वीडियो, नॉट माई लेक्चर. अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कैंडल है, सपोज कैंडल या एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे रखा गया है. ठीक है, इससे दो रेज ऑफ लाइट निकल रही है. एक परपेंडिकुलर जा रही है नीचे और एक जा रही है टूवर्ड्स बी. इफ यू हैव योर बुक विथ यू, you can see the same. Do you have the same diagram in your book? Yeah. So एक ray of light जा रही है नीचे towards AM और AN, and एक जा रही है slant oblique towards AB. ठीक है, जो AM मतलब perpendicularly नीचे जा रही है नॉर्मली, वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि ये जो MLPN या फिर MNPL जो है, दैट इज अ थिक स्लैब ऑफ मिरर, जिसका नीचे वाला सरफेस मिरर्ड है और ऊपर ग्लास का स्लैब है मोटा वाला. ठीक है, तो ये ग्लास के अंदर जाती है रे ऑफ लाइट और फिर उसी पाथ से वापस निकल जाती है. बट जो बी पे जाती है रे ऑफ लाइट, उसके साथ दो चीजें होती है. एक चीज कि ये some part of the ray gets reflected along BP, and another thing is most of the part of the ray, most intensity of the ray goes inside the glass slab after refraction towards direction BB dash. ठीक है, अच्छा BB dash पे रिफ्रैक्शन होके नीचे गया, BP पे रिफ्लेक्शन होके बाहर गया. अब अगर तुम ये BP को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये जो तुम्हारा ओरिजिनल पाथ ऑफ रे है उसको वो A1 पे मीट करेगा. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम एंड टू एक्सप्लेन इट ना इट्स लिटिल ट्रिकी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. इफ यू प्रोड्यूस दिस BP बैकवर्ड्स, इट मीट्स द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे विच इज द परपेंडिकुलर पाथ जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट थी, उसको A1 पे मीट करेगा. A1 पे एक इमेज बनेगी विच विल बी फेंट इमेज, very faint. अच्छा, since most of the intensity of the light has gone in the direction BB dash, B dash पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके B dash C के डायरेक्शन में जाएगा. B dash C पे वो आधा रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगा CQ की डायरेक्शन में, और some part of it will be reflected again from the surface ML, top surface of that thick slab, and it will go down in the direction CC dash. ठीक है, so what happens here? CC dash के नीचे CC dash के डायरेक्शन में जो रे ऑफ लाइट गया है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ता रहेगा, एंड you will get consecutive images of this object kept at A in its line. तो मैंने पहला इमेज बताया A1, सेकेंड इमेज जो बनेगा A2, that will be the brightest, क्योंकि most of the intensity of light is actually going is inside and meeting at this point, and out of that most intensity of light, most of the part is going out in the direction Q. ठीक है, और ये Q को अगर CQ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो वो A2 पे मीट करता है. ऐसे तुम्हें मल्टीपल इमेजेस एक चीज के देखने मिलेंगे. जैसे बहुत इजी एग्जांपल दे दूं, तुम लोग किसी शोरूम में जाते हो, वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है. चेंजिंग रूम में पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं. पैरेलल मिरर्स में कभी देखा है तुमने? मल्टीपल इमेजेस दिखेगी तुम्हारी. बार्बर शॉप में भी होता है ये. ठीक है, इसमें जो सेकंड इमेज होती है वो हमेशा ब्राइटेस्ट होती है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग अबाउट. नोबडी सीज दैट, नोबडी काउंट्स, अरे सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन है ये. But yet, I'm not sure whether you're much satisfied with this part as much as the earlier parts. So I'm going to send you an animated video of that.
I'll find it on internet and I'll send you. ठीक है, this which will explain this phenomena of multiple reflection in a thick mirror and why the second image is brightest. उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया है, तो एक बार तुम भी रीड करने की कोशिश करो. हमेशा वीडियो और एनिमेशंस पे डिपेंड रहना भी सही नहीं है. रीड इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मैं क्या बोलना चाहता था. ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. होमवर्क की बारी आ गई है. ठीक है, होमवर्क तो देना ही पड़ेगा मुझे. होमवर्क मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारा काम दे रखा है, वीडियो देखने, नोट्स लेनी है, बट होमवर्क नहीं दूंगा तो यू आर गोइंग टू फॉरगेट ऑल द इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली. सो आई हैव टू गिव यू होमवर्क. नोट इट डाउन प्लीज. Stop the recording.